মোদি ঝড় যা মনে করা হচ্ছিল 2014 পর ঝড় অনেকটাই ফিকে হয়ে গিয়েছে। উত্তরপ্রদেশে ততটা ভালো ফল হবে কি, কিন্তু সত্যি ক্লিন সুইপ এবং 307 যেটা অপ্রত্যাশিত বিজেপির কাছেও, কারণ তাবর নেতারাও 307 এমন ফিগার মুখে আনেননি। বিভিন্ন বুথ ফেরত সমীক্ষা অনেকটা এগিয়ে রেখেছিল, কিন্তু এতটা কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হলো? মোদি ম্যাজিক, মোদি ঝড়, এখানে একটা প্রশ্ন। আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে অতিথিরা রয়েছেন স্টুডিওতে, আমি শিবাজিদার কাছে আসবো। শিবাজিদা, মোদি ম্যাজিক যদি উত্তরপ্রদেশে এত বছর পরে এবং অন্যান্য রাজ্যেও আমরা যেভাবে দেখছি ক্রমশ ক্লিন সুইপ না হলেও বাড়ছে শক্তিটা, পার্সেন্টেজ বাড়ছে ভোটের, পশ্চিমবঙ্গে নয় কেন? পশ্চিমবঙ্গ তাহলে কত দূরে? পশ্চিমবঙ্গে যতক্ষণ না একই, ঠিকই মোদি যেমন ঝড় রয়েছে এটা ঠিকই, বারবার বিজেপির আগেও যিনি ছিলেন সায়ন্তন ছিলেন, শ্রমিক, সবাই বলবে যে পেছনে একটা সংগঠনও বড় রকম রয়েছে, ঠিকই। মুশকিল হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে অনেক ইস্যু আছে হয়তো বিজেপির, কিন্তু বিজেপির সংগঠন কোথায়? বিজেপির সেই সংগঠনটা নেই। তারা ব্যাংক করে আছে দুটি তিনটি ঘটনার ওপরে, বা কখন অন্যভাবে একটা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হবে বা কার্পেট বম্বিং হবে, অর্থাৎ কেউ কেউ জেলে যাবেন বা কিছু হবে, এগুলির ওপর ভরসা করে থাকলে বিজেপি কিন্তু এখানে আসতে পারবে না। কিন্তু একটা ব্যাপার ঘটবে যে বিরোধীদের সাপোর্ট বেস, যেটাকে আগে বলা হতো বামেদের প্রতিদিন একটু একটু করে রক্তক্ষরণ হয়ে বিজেপিতে যাচ্ছে, যেটা আটকে গেছিল, সেটা আবার আসতে পারে ফেরত। অর্থাৎ কিনা এখন যে অবস্থায় রইল, কংগ্রেস হীনবল ওই দুটো জেলার পার্টি হয়ে থাকছে, এবং সেখানে এই যে বামপন্থীদের একটা বড় অংশ, কংগ্রেসেরও একটা কিছু অংশ হতেই পারে, যারা সত্যি বিরোধী রাজনীতি করে, তারা কিন্তু এখন প্রোটেকশনের জন্য, আর কিছুর জন্য না হলেও প্রোটেকশন একটা বড় ব্যাপার, তার জন্য হয়তো বিজেপির দিকে অবশ্যই যাওয়ার চেষ্টা করবে। কারণ হচ্ছে এটাই খুব স্বাভাবিক, কারণ কংগ্রেস এবং তৃণমূল, সিপিএম, তারা কিন্তু তাদেরকে সেই লিডারশিপ এবং প্রোটেকশন, লিডারশিপ খালি দিলে হয় না, তাদের প্রোটেকশন দিতে হয় কর্মীদের বা ইত্যাদিতে, সেটা দিতে অক্ষম। বিজেপি যদি দিতে পারে এই আশাতে অনেকে বিজেপির দিকে যাওয়ার জায়গা থাকবে। তাছাড়া নানা রকম সোশ্যাল টেনশন ওয়েস্ট বেঙ্গলেও নানা জায়গায় আনফর্চুনেটলি হচ্ছে, সেগুলির যতটা এই ঝড়টা কি আবার নতুন করে শুরু হলো? স্তিমিত মোদি ম্যাজিক আর ততটা কাজ করছে না। তাহলে একটা জিনিস কিন্তু এটা বুঝতে হবে, উত্তরপ্রদেশ কি দেখালো? উত্তরপ্রদেশ যেটা দেখালো, কনফিডেন্সটা বাড়ালো। উত্তরপ্রদেশে আর মানে নিশ্চয়ই পাঞ্জাবে জেতাটা, পাঞ্জাবে তো হারবে ধরেই নেওয়া হয়েছিল, তার থেকে কিন্তু বেটার হয়েছে একটুখানি, তার থেকে যতটা খারাপ পাওয়া গেছিল তার থেকে একটু, আমরা ভাবছিলাম 12, 13, 14, 15, তাই তো বলছিল, তার থেকে বেটার হয়েছে। কিন্তু উত্তরপ্রদেশটা একটা কনফিডেন্স জোটাবে, বুস্ট যেটাকে বলে, মরাল বুস্ট। এবং বিজেপির লোকেরা, আমি এটা নিজে দায়িত্ব নিয়ে বলছি, বিজেপির এমপি, বিজেপির কর্মীরা অনেকে এতটা, এই যে 305 বা 7-এর কাছে যাচ্ছে, এই কনফিডেন্স তারা যদি বলে আজকে, যেটার দিনে তারা বলতেই পারেন যে ওই যে নাথিং সাকসিডস লাইক সাকসেস, তা আজকে বলতে পারেন, কিন্তু কালকে অবধি তারা শিওর ছিলেন না 180, 90, 200 এরকম একটা, আজকে সকালবেলা অবধি। এই জায়গা থেকে তাদের মধ্যে যে একটা বুস্ট, এইটা রাজনীতিটা না 2-2 খালি 4 হয় না, 2-2 5 কিংবা 7 হয়ে যায়। এই যে একটা এক্স ফ্যাক্টর আসে, এটা হচ্ছে উৎসাহ। এই এক্স ফ্যাক্টরটা নিশ্চয়ই উত্তরপ্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, পশ্চিমবঙ্গে থাকবে, পশ্চিমবঙ্গে তার প্রভাব আসবে। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা মুখ পশ্চিমবঙ্গে অনেকেই তাকে পছন্দ করেন না বা করবেন না, সেটা হচ্ছে দিলীপ ঘোষ। দিলীপ ঘোষকে পছন্দ করবেন এরকম লোক অনেকেই নেই, কিন্তু তিনি যেরকম কথা বলেন, কিন্তু এক ধরনের কথা বলছেন, মানে সেটা আরেক ধরনের, মানে একটা এক্সট্রিম একটা সেটা মনে হতে পারে যে আমাদের ঠিক লেখাপড়া জানা বা ইত্যাদি যে কথাবার্তা, সেরকম কথাবার্তা না। শ্রমিক আমাদের যেরকম কথাবার্তা বলেন, সেই রকম যেভাবে তার বাচনভঙ্গি, যেরকম তার শব্দচয়ন, সেসবগুলো তার নেই। কিন্তু কোথাও একটা ওই এক্সট্রিম যে একটা, যেটাকে বলবো রাফ অ্যান্ড টাফ, যদি টাফ না হলো এরকম একটা ইমেজ করার, এটাও কিন্তু মানুষকে কোথাও একটা অ্যাট্রাক্ট করতে পারে। আমি জানি না করে কিনা, কিন্তু এটা নিয়ে ওম প্রকাশ দা, একটা কংগ্রেস বিরোধী দলের জায়গায় রয়েছে, কিন্তু যেভাবে মোদি ঝড় এবং বিজেপি একটা সর্বগ্রাসী মানসিকতা দেখাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে তার প্রভাব পড়াটা অবশ্যম্ভাবী। আপনি কি বলবেন? ওম প্রকাশ দা, আসবো আপনার কাছে। উত্তরটা শুনতে পারলাম না, কারণ মায়াবতী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছেন। শুনবো সরাসরি। मीडिया बंधुओं, जैसा कि ये सर्वविदित है कि देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा आम चुनाव के आज जो परिणाम दिखाए जा रहे हैं, उनमें से खासकर उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड राज्य के
चुनाव परिणाम बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं तथा किसी के भी गले के नीचे से उतरने वाले नहीं हैं। शायद आप लोगों के भी गले के नीचे से आसानी से उतरने वाले नहीं हैं। इन दिखाए जा रहे परिणामों से ऐसा साफ तौर पर प्रतीत होता है कि वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है, अधिकांश स्वीकार ही नहीं किया है, या फिर अन्य पार्टियों के वोट भी बीजेपी के ही खाते में चले गए हैं। पार्टी द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक, जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है, तो पार्टी द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी ज्यादातर वोट बीजेपी को ही चले गए हैं, जिससे इस आशंका को और भी ज्यादा बल मिलता है कि वोटिंग मशीनों को अवश्य ही मैनेज किया गया है। आप लोगों को ये मालूम है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, जहां मुस्लिम समाज का जो वोट है 18 और 20% के करीब है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट मुस्लिम को ना दिया हो, इसके बावजूद भी मुस्लिम बहुल्य इलाकों में मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी को चला जाए, क्या आप लोगों के गले के नीचे से ये उतर रहा है? हमारी पार्टी के लोगों के, मैं समझती हूँ कि पूरे दुनिया में भी यदि ये बात उनके सामने रख दी जाए तो उनके गले के नीचे से नहीं उतरेगी। सन 2014 के लोकसभा आम चुनाव के समय में भी, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम के संबंध में भी इसी प्रकार की आशंका जताई गई थी। जब इनको 73 सीटें मिली थी, इसी प्रकार की आशंका सन 2014 में भी जताई गई थी कि वोटिंग मशीनों में जरूर गड़बड़ी की गई है, जिसके बिना बीजेपी के पक्ष में ऐसा खास चुनाव परिणाम बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता था सन 2014 में भी। और इतना ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में वोटिंग मशीन के संबंध में ये चर्चा आम रही है कि बटन कोई भी दबाया जाए, वोट बीजेपी के कमल पर ही जाएगा, परंतु उस समय इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जबकि चुनाव आयोग के सामने बार बार इस मुद्दे को उठाया गया है। ऐसी ही शिकायत अभी हाल ही में हुए महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव में भी वोटिंग मशीन में गड़बड़ी के संबंध में की गई थी। इस संबंध में दिनांक 6 मार्च सन 2017 को वोट पड़ने, आखिरी चरण के वोट से पहले, इस संबंध में दिनांक 6 मार्च सन 2017 को 7वें व अंतिम चरण के मतदान से एक दिन पहले मेरी आयोजित, यानी कि जो चुनाव प्रचार खत्म होना था, तो एक दिन पहले मेरी आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसी प्रकार का सवाल, आपको याद होगा, इसी प्रकार का सवाल एक पत्रकार द्वारा सभी पत्रकारों के समक्ष मुझसे पूछा गया था, किया गया था, और आप लोग इस बात के गवाह हैं। और मेरे ख्याल उसी आज जहां ये सामने खड़े हैं, इधर ही एक पत्रकार था, शायद पहली बार आप लोगों ने देखा था, उसने टोपी सर के ऊपर लगाई हुई थी, तो आखिरी चरण वाले में, हाँ, टोपी लगाई हुई थी उसने, और जहां उधर वो खड़ा हुआ था, जब सवाल जवाब हो रहे थे, आपको याद होगा, तो हाँ, मेरे को क्या मालूम था कि सचमुच वो सही बोल रहा है, ये तो आज मालूम पड़ा जब रिजल्ट आ रहा है।
जब उसने वो सवाल मेरे से पूछा कि जो मैं आज एलिगेशन लगा रही हूँ, तो वो सवाल जब उसने कहा था कि भाई आपका जो वोट है वो तो आपकी पार्टी के लोगों का या दूसरी पार्टी का, वो तो कमल पे ही जा रहा है। तो मैंने उस पत्रकार की बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला नहीं, आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उसको इग्नोर किया। तो आज मुझे लगा कि इसका मतलब वो पत्रकार सही बोल रहा था, और आज मुझे लगता वो नजर भी नहीं आ रहा है। वो जो है उस दिन वो खड़ा हुआ था और आप लोग भी देख रहे थे कि ये आदमी कहाँ से आ गया। तो उसने ये सवाल मेरे सामने रखा था और आप लोग इस बात के गवाह हैं। किंतु सन 2014 के लोकसभा व वर्तमान में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड विधानसभा आम चुनाव के दिखाए जा रहे परिणामों को देखकर, जो 14 में परिणाम आया लोकसभा का, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड विधानसभा के आम चुनाव के दिखाए जा रहे परिणामों को देखकर ये मामला अब इतना ज्यादा गंभीर हो गया है कि इसके बारे में और ज्यादा खामोश रहना लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगा। ये हमारे देश के डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और खास तौर से मैं मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये कहना चाहती हूँ, चेतावनी देना चाहती हूँ। मैं खुली चेतावनी दे रही हूँ कि जो मुझसे 6 तारीख को पत्रकार ने पूछा था, मैंने उसकी बात पर गौर नहीं किया। सन 2014 में भी ये बात हमारी पार्टी के लोगों द्वारा मेरे सामने रखी गई थी। तो मैंने सोचा कि, और ये बात मुख्य चुनाव आयोग के संज्ञान में भी ये बात लाई गई थी बीच बीच में जब मीटिंगें होती रही। तो लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि उनको पूर्ण बहुमत मिल गया है, उससे ज्यादा उनको सीटें मिल गई हैं। और लेकिन जिस तरीके की गड़बड़ी करके इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, और ये इन्होंने अपने पक्ष में जो ये बहुमत साबित किया है आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह को मैं खुली चेतावनी देती हूँ, यदि आप सही मायने में ईमानदार हैं तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त को लिख कर दो कि ये जो चुनाव है तो हम बिल्कुल, हमको सही वोट पड़ा है। यदि वो सही ईमानदार हैं तो ये वोटिंग मशीन वाला जो है चुनाव, तो इसको रद्द करा के मुख्य चुनाव आयोग को बोले, जो पुरानी व्यवस्था थी बैलेट पेपर की, उससे चुनाव कराएं। जो पुरानी व्यवस्था थी बैलेट पेपर वाली जो है, उससे चुनाव कराएं। यदि इनमें थोड़ी सी भी ईमानदारी है, हमने उनके ऊपर आरोप लगाया है। हमने मुख्य चुनाव आयोग को भी लिख कर दिया है चिट्ठी, जो उसकी भी कापी हम आपको दे देंगे। यदि उनमें थोड़ी सी भी ईमानदारी है और वो कहते कि नहीं हमारे पक्ष में वोट पड़ा है, तो उनको घबराना नहीं चाहिए। फिर उनको बैलेट पेपर के माध्यम से, जो पुरानी व्यवस्था थी, उस माध्यम से चुनाव कराना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा, यदि उनमें थोड़ी सी भी ईमानदारी है तो। और यदि वो नहीं कराते हैं तो समझ लो, जो उस पत्रकार ने 6 तारीख को मेरे से सवाल पूछा था, और सन 2014 में भी ये बात हमारी पार्टी के लोगों ने मेरे संज्ञान में डाली थी, तो लेकिन हमने ज्यादा गौर नहीं किया। लेकिन जिस तरीके के जो रिजल्ट आ रहे हैं, और खासतौर से मुस्लिम बहुल्य इलाके में बीजेपी को वोट निकल रहा है, तो ये तो बड़े गंभीरता से सोचने वाली बात है। और ये लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं हो रहा है। और इस मामले को मैं ये समझती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी नहीं, पूरा विपक्ष, पूरा अन्य पार्टियां भी इस मामले को जरूर गंभीरता से लेंगे, नहीं तो लोकतंत्र नाम की चीज अपने इंडिया में रहेगी नहीं। आपको मालूम है कि अमेरिका में भी इसी मशीन की शिकायतें आई थी, और जब वहां के लोगों ने आवाज उठाई तो ये जो वोटिंग मशीन वाला सिस्टम, उसको खत्म करके वो पुरानी व्यवस्था में वो लोग आ गए थे। नहीं तो सन 2019 में यदि यही वाली व्यवस्था चली तो समझ लो कि फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। लोकतंत्र नाम की चीज इधर रहेगी नहीं, और फिर तो विरोधी पार्टियों को चुनाव लड़ना नाम मात्र के लिए रह जाएगा। तो इसलिए अब इस संबंध में हालांकि हमने मुख्य चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बुलाया है।
अब उत्तर प्रदेश में खासकर ज्यादातर लोगों का विश्वास ईवीएम अर्थात वोटिंग मशीन पर से लगभग उठ सा गया है, लगभग क्या पूरा उठ गया है। और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि उनके वोट जो उन्होंने, हमारी पार्टी के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि उनके वोट जो उन्होंने बीएसपी को दिए थे वो आखिर कहां चले गए। मुस्लिम समाज के लोग ये बोल रहे हैं कि हमने तो बीजेपी को वोट दिया ही नहीं है,